सुवर्ण कपिला कहा जाता है। जो है ये उठ नहीं पाते, इनको अपने गोभक्त हाथों से खिलाते हैं और इनकी ट्रीटमेंट दिन रात चलती रहती है। उसको पाटा बांधा हुआ है, इसका एक्सीडेंट हुआ था, पैर कटिंग करने में आया है, इसके ऊपर एसिड फेंका गया है। सावधान करिए, ये पूरा कैंसर इसके आंखों में फैल गया है। पूरी हालत में थी, इनका पैर फ्रैक्चर था, आज स्वस्थ हुई है। पर उसका ऑपरेशन थिएटर गायों के लिए। यो व्हाट्सएप वेलकम टू ब्लॉग 88 में आपका स्वागत है। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি গুজরাটের সুরাট শহরে উদনা এলাকার রিলেটেড একটা জায়গায়, যেখানে কমসে কম 150 থেকে 200 গরু নিয়ে এসে পালা হয়। আগে আমি বলে দিই যে ভারত হচ্ছে একটা সেকুলার কান্ট্রি, মানে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ রয়েছে। কিন্তু এখানে বিভিন্ন প্রজাতির যেহেতু এটা সেকুলার কান্ট্রি, আর সেকুলার কান্ট্রি হলেও কিন্তু এখানে বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ রয়েছে এবং এখানকার প্রজাতির যে ধর্ম রয়েছে সে ধর্ম কিন্তু আলাদা আলাদা। বাট আজকে কিন্তু আমার এইটা টপিক নয়, আজকের আমার টপিক হচ্ছে গরু নিয়ে। হ্যাঁ, ভারত হচ্ছে গরু কিছু প্রজাতির মানুষ আছে যেটা এটাকে ননভেজ হিসাবে শোষণ করে এবং কিছু প্রজাতির মানুষ রয়েছে যারা এটাকে ভগবান বলে শ্রদ্ধা করে এবং ব্যাপকভাবে এটাকে মানে। তো আজকে গুজরাটের সুরাট শহরের উদনা এলাকায় আমি এমন একটা এলাকায় রয়েছি যে সংস্থা যেসব গরুগুলোকে, মানে সুরাটের এরকম একটা জায়গা রয়েছে, হয়তো আপনারা জানেন না, বাট আমিও জানতাম না, ফাইনালি আমি এখন জানলাম যে আমাদের বাংলায় বলে না হেলে গরু আর বগনা গরু, তাই তো, মানে মেল অর্থাৎ ফিমেল। তো যে গরুটা যখন জন্ম নেয় তখন সেই গরুটা এরা অন্য কোথাও ফেলে দেয়, রাস্তায় ছেড়ে দেয় বাচ্চা অবস্থাতে। তো সেই সব গরুগুলোকে, এবং এছাড়াও এরকম নয়, এছাড়াও অন্যান্য গরু যারা রয়েছে, যখন দেখা গেল সে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে বা সেই গরুর মানে কেউ দেখভাল করে না, কেউ নেই, কোনো অর্ডার নেই, কোনো মালিক নেই, ঠিক আছে, তো সেই সব অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই সব গরুকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসে এই সংস্থা সেই গরুকে ট্রিটমেন্ট করছে। এরকম শুধু একটা সংস্থা নয়, এরকম অনেক সংস্থা কিন্তু অলরেডি এই গরুর ওপর কাজ করছে। তো সেইটারই মধ্যে এমন একটা আমি সংস্থার মধ্যে রয়েছি, সে সংস্থা কমসে কম 150 থেকে 200 গরু সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে তারা এই সংস্থায় ফ্রি ট্রিটমেন্ট করছে। আজকে এই পুরো জিনিসটা আমি নিজে অনেক কিছু শিখবো, নিজে অনেক কিছু জানবো এবং নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে শায়দ, আমি মনে করতে পারছি। এবং এদের এই সংস্থাকে আমার তরফ থেকে কুর্নিশ জানাচ্ছি। অ্যান্ড আজকে আমি টোটালি এক্সপ্লেন করব যে গরুকে, এখানকার গরুকে তারা অন্য জায়গা থেকে কিভাবে তুলে নিয়ে আসছে এবং তারা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করছে। আমি এখানকে জানবো যে এখানকার যে ওনার রয়েছে, এখানকার যে মালিক রয়েছে, যে এটা পুরো জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করছে, মানে করছে, পুরো জিনিসটাকে পরিচালনা করছে। আমি আজকে তার সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করব, বিষয়টা জানবো যে আসলেই বিষয়টা কী। কোন চ্যানেলে হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে, পাশে বেল আইকনটি প্রেস করতে একদম ভুলবে না। তো লেটস स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, कांता क्या करते हैं आप यहाँ पे? सफाई करते हैं, खाना डालते हैं, गाय का देखभाल करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ सेवा करते हैं, पूरा दिन सफाई करते हैं, चारा डालते हैं। अच्छा, যেখানে মানুষ পরিবারে কন্যার জন্ম নিতে অস্বীকার করে, ঠিক তেমনি গরুর ক্ষেত্রেও যদি মেল গরু হয় অর্থাৎ হেলে গরু হয় তা নিতে কিন্তু অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, দূর থেকে দূরে, মানে শহর থেকে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। আজ আমি এমন এক জায়গায় ভিজিট করতে চলেছি, সেখানে এই ধরনের গরু অথবা রাস্তায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সেই সব অবলা জন্তু, অবলা গরুকে নিয়ে এবং তাকে ট্রিটমেন্ট করা এবং তাকে সুস্থ করা তাদের কাজ। এই সংস্থার নাম শ্রী মাধব গোশালা, গুজরাটের সুরাট শহরের উদনা এলাকায় অবস্থিত শ্রী মাধব গোশালা। इसका क्या काम है, क्या करते हो इसके ऊपर? ये अपने श्री माधव गौशाला का माधव रथ है। गौशाला में कोई भी गाय दूध वाली नहीं है, इसलिए गौशाला का खर्चा महीने का 2.5 लाख रुपया है। तो हमने एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट निकाला कि सूरत में जो शादी और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें ये बैल गाड़ी हम वहाँ प्रसंग में देते हैं, उससे जो दान आता है उससे दवा और चारा हम खरीद के गायों को खिलाते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। यह अपनी माधव गौशाला जो निराधार दिव्यांग बीमार गौवंश की सेवा कर रही है, जो सूरत में उदना में आई है। और यह गौशाला में
पूरे सूरत सिटी में से जो निराधार, दिव्यांग और एक्सीडेंट हुए और बीमार हुए जो गोवंश है, मतलब नंदी महाराज, गाय माता, उनको यहाँ लाया जाता है, उनकी यहाँ ट्रीटमेंट होती है। आइए हम जानते हैं कैसी कैसी प्रकार की यहाँ पे गाय है। एक तो संत से अपने मिट्टी लाए हैं, उसमें मिट्टी में गायों को बहुत आरामदायक रहता है और नीचे पड़ी भी रहती है तो भी उसको जख्म नहीं होती है। अच्छा। और हम देखते हैं एक गौ माता, इसके तीनों पैर डैमेज है एक्सीडेंट में, और इसको सुवर्ण कपिला कहा जाता है, जो गायों में बहुत महान है। साथ में ये अपने बछड़े जो नंदी महाराज है, उनके भी तीनों पैर इसको तीनों पैर आइसर में आने के बाद डैमेज हो गए हैं, ये उठ नहीं पाते। इनको अपने गोभक्त हाथों से खिलाते हैं और इनकी ट्रीटमेंट दिन रात चलती रहती है। साथ में अपने देखा जाए कि आगे आपको बताना चाहता हूँ, तो पीछे वाला पैर है एक्सीडेंट में डैमेज हुआ है और फ्रैक्चर हुआ था, उसको पाटा बांधा हुआ है और 1 महीने के अंतर वो अच्छी हो जाएगी। उसी साथ साथ में ये गौ माता, इसका भी पैर फ्रैक्चर है। ऐसी यहाँ पे फ्रैक्चर और निराधार जैसे बीमार ऐसी गाय आती है, उसको ठीक करना एक वेटनरी डॉक्टर रखा है, जो महीने के यहाँ पे मानधन उनको चुकाते हैं और यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होती है। ये दूसरा सेट, इसमें अच्छा ये पहला सेट ये दूसरा सेट नहीं पाते कि वह खुद के मन से खा नहीं सकते, उनको यहाँ हम रखते हैं। दूसरे इसमें वो खुद खा सकते हैं। अच्छा। ऐसी गाय जैसे कि दोनों पैर से डैमेज थी, इसको गौशाला में अच्छा किया, आज इसके पेट टेढ़े हैं पर खुद चल पाती है। खुद चल पाती है। आज ये नंदी महाराज, इसका कोई नहीं था, इसका एक्सीडेंट हुआ था, पैर कटिंग करने में आया है और एसएमसी के कर्मचारी ने इनको, महानगर के कर्मचारी ने इनको यहाँ पे लाके अच्छा काम किया है और यहाँ पे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी। साथ साथ में बताना चाहता हूँ कि ये नंदी महाराज जो हजीरा विस्तार में, इनके ऊपर एसिड फेंका गया है। अच्छा। तो मैं सभी समाज को विनती करता हूँ कि ऐसे जो कृत्य जो लोग समाज में कर रहे हैं उनको सावधान करिए कि हम मंदिर में जाके पत्थर के नंदी महाराज को पूछते हैं, पर ऐसे जीवते नंदी महाराज को हम एसिड डाल के मारते हैं, एक सब गलत काम है। तो इसलिए माधव गौशाला ऐसे जो पीड़ित गोवंश है उनको लाके उनकी ट्रीटमेंट कर रही है। ये गौ माता कैंसर हुआ है। अच्छा। हम दोनों आँख चली गई है। हाँ, ओके। ये देख नहीं पाते, ये पूरा कैंसर इसके आंखों में फैल गया है, तो इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। जब आई थी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी जख्म थी, अभी बहुत अच्छी हो गई है। ये जो यहाँ पे आई थी बहुत बुरी हालत में थी, इनका पैर फ्रैक्चर था, आज स्वस्थ हुई है, पर लंगड़ के चलती है। पर अभी हम इसको स्वस्थ बोल सकते हैं। जो हम जानते हैं कि लंपी वायरस जो गायों के बीच में आया था, ये लंपी वायरस से बहुत ग्रस्त हुई थी, तो इसको अपने गौ भक्तों ने माधव गौशाला में लाके इसकी अपनी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की और आज ये गौ माता अपने सामने जीवंत हालत में है और बहुत स्वस्थ हालत में है। यह है माधव गौशाला, और सामने आप देख पा रहे हो उसका ऑपरेशन थिएटर गायों के लिए। गाय का ऑपरेशन थिएटर, ये ऑपरेशन थिएटर, तो यहाँ पर गाय का जो ऑपरेशन होता है, राइट, तो यहाँ पे कैसे ऑपरेशन होता है थोड़ा दिखा दो। उधर से एम्बुलेंस में गाय आती है, डायरेक्ट गाड़ी यहाँ से आती है, वहाँ से टेम्पो में से इसको चेन कप्पर में गाय को पट्टे से पकड़ के ये ओटी टेबल पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे गायों को ये ओटी टेबल ऐसा ऊपर किया जाता है, जितना हो सके उतना डॉक्टर को आवश्यकता लगे उतना ओटी टेबल ऊपर किया, उसके हिसाब से कस्टमाइज करते हाँ, और इसको बांध दिया जाता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट चलती है। इस टाइप का टोटल वेटरनरी डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, वो उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। चिकित्सा कक्ष से वहाँ पक्षियों का ऑपरेशन होता है। ये आपका मेडिसिन, यहाँ पे गाय का सब মানে গরুর যত ডাক্তারের যত কিছু ওষুধ প্রকার যাগুলো রয়েছে সব কিছু এর মধ্যে এখানে রয়েছে, পুরো ডাক্তারের সমস্ত সব কিছু এখানে ব্যবস্থা, মানে সব কিছু এখানে রয়েছে। ওষুধ বলো, স্যালাইন বলো, বাটনা বলো, সব সমস্ত রকমের ওষুধ কিন্তু এই দেখভাল করার জন্য কিন্তু এখানে জাস্ট অসাধারণ। गाय के ऊपर जितनी गाय बीमार है उतना खर्चा बढ़ता है, बढ़ भी सकता है, जितनी गाय कम आती है तो घट भी सकता है। এই যে গরুর এই যে গোবর, এখানকার যে সংস্কৃতিটা দেখুন খাঁটি, এই মানে গরুর যে গোবর রয়েছে, এই গরুর যে প্রস্রাব রয়েছে, কারণ এই গরুর দুধ তো হয় না, তো দুধটা এখানে বিক্রি করার কোনো মানে হয় না। এখানকার যে গোবর রয়েছে, এখানকার যে চামড়া রয়েছে, যে পেশাব রয়েছে, এগুলো কিন্তু এরা চাইলে কিন্তু লাখো টাকায় বিজনেস করতে পারে, বিক্রি করতে পারে, কিন্তু এটা হয় না। এরা গরুকে এতটাই ভগবান হিসাবে মানে, এতটাই শ্রদ্ধা করে যে এদের পুরো জিনিসটাই আমি লাইভ আপনাদের থোড়া আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। টোটালি এটা ওয়েস্টেড হচ্ছে একদম গাডারে। এরা টোটালি এই পুরো যে প্ল্যান্ট রয়েছে, এই পুরো প্ল্যান্টটার একদম শেষ সীমানায় একটা গাডার রয়েছে, এবং সেই গাডারে কিন্তু টোটালি এটা ওখানে চলে যাচ্ছে। এই গোবর
গরুর প্রস্রাব এই টোটালি কিন্তু এই গার্ডারে চলে যাচ্ছে। তো কাজেই এখানে যে গোবর, যে আমাদের যে বাংলায় যেমন হয় যে গোবরের সার তৈরি হচ্ছে, গোবর দিয়ে গরুর যা কিছু জিনিস সব কিছু কাজে লেগে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে গরুর কোনো জিনিসটাই কাজে লাগানো হচ্ছে না। এটা টোটালি ওয়েস্টেড, মানে একটা গার্ডারে চলে যাচ্ছে। তো এটা কিন্তু খুব সুন্দর লেগেছে, এদের যে সংস্থার, এই সংস্থার যে কাজ, এদের যে থিঙ্কিং জাস্ট অসাধারণ, একদম মাইন্ড ব্লোয়িং যাকে বলে। अरे आशीष भाई नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत क्या कर रहे हैं? बस यहीं पे बैठ के बात करेंगे। गाड़ी पे बैठ के बातचीत करते ये हैं। पहले ये कौन सा गाड़ी है, पहले ये बताओ। ये बैलगाड़ा है, यानी हाँ। ये बैलगाड़ा जो है ना, हाँ ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और टिकाने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लाए हैं। अच्छा, और ये ये नया कॉन्सेप्ट है कि इससे पहले भी अपने ये अपने से जो देखने जाए तो बहुत पौराणिक है। पौराणिक जो बात करें सौराष्ट्र में जो पहले जो शादी ब्याह होता था, हाँ। तो ऐसे बैलगाड़ी के ऊपर ही सब लोग बैठकर हाँ। जाते थे। अच्छा। और अभी जो फिलहाल देखे तो हमने ये सूरत में एक साल से अंदर ही शुरुआत हमने जो की है, और उसका प्रतिशत भी बहुत अच्छा मिल रहा है। यानी मिल रहा कहना चाहता हूँ कि अपने जो आराध्य देव जो महादेव जी है, जब वो भी शादी करने गए तो नंदी महाराज के ऊपर बैठ के गए थे। और बैठ के गए हम हमारे कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो या कुछ अच्छा कुछ प्रसंग हो, हाँ। वो वहाँ अपने नंदी महाराज को साथ में लेकर कर रहे हैं। और इसमें दूसरा साथ में है भी क्या हाँ, सही है। कि ये जो इसकी जो आवक रहती है ना, हाँ। तो हम उसके जो गौशाला है, तो गौशाला में जो बीमार गाय है उसके दवाई और चारे के लिए हम खर्च करते हैं। आगे थोड़ा बैठ के बात करेंगे, मज़ा आएगा यार। हाँ आइए। सवारी, गाय का सवारी, हाँ। यार गाय का सवारी करवा देते तो अच्छा होता। बहुत बढ़िया है। तो मैं ये कहना है कि उस दिन मैं आया था इधर से, और ये मेरा नज़र में आया बहुत कि गुजरात में ये बहुत मशहूर है, गाय को रोड से उठाकर लाना और उसका सेवा करना, पहला। और दूसरी बात है ये है कि गाय को यहाँ पर गौ माता, भगवान, गाय को भगवान मानते हैं बहुत। गाय को दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर पालना और उसको ट्रीटमेंट करना जब तक उसका देहांत ना हो जाता, तब तक आप उसको टोटली ट्रीटमेंट कर रहे हो अपने खर्चे से, जो भी है। ये कैसे ख्याल आया? अभी जो शुरुआत कहाँ से? अभी जो देखा जाए तो ऐसे ये जो जगह है, यहाँ हमने 5 साल से करीब गौशाला की शुरुआत की है। 5 साल से। मगर उससे पहले हम ऐसे ही बहुत जगह रास्ते में देखते रहे थे कि बहुत सारे गौ माता के एक्सीडेंट होते थे, और गौ माता के एक्सीडेंट के साथ साथ में हम देखते थे कोई किसी न किसी इंसान का भी एक्सीडेंट, उनका भी जीव चला जाता था। फिर हमने सोचा कि हमारी संस्था कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यक्रम, ऐसे कुछ ना कुछ ब्लड कैम्प है या शैक्षणिक क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम हम करते रहते हैं। फिर हमने सोचा कि ये जो मूंगा प्राणी है, यानी उसको जो बता रहे कि वो बोल नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सके, तो उसका कौन? तो हमने फिर वो सोचकर यहाँ गौशाला शुरुआत की, 2 गाय से शुरुआत की। आज नहीं करके 125 से ऊपर ज़्यादा गौवंश है, और देखते जाए तो कोई भी गाय दूध वाली नहीं है। साथ में देखे, और जो पूरे सूरत शहर में एकमात्र इतना ऐसा ही आईसीयू वार्ड है ये बड़ा, कि ऐसा पूरा वार्ड कहाँ भी नहीं होगा। इतना बड़ा ये आईसीयू वार्ड हमने यहाँ निर्माण किया है। कि हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर एक रियाज चलता है कि घर पे बेटी पैदा होता है तो अलग ही माहौल हो जाता है यहाँ पर। मतलब उनको किसी को होता है ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, तो वैसा गाय को भी मतलब ऐसा होता ही है। मुझे गुजरात में आकर पता चला उसमें कैसे ख्याल आता है इंसान के। उसमें ऐसा है, हम सबको पता है कि आज देश की जो बात करें तो बेटी की 1000, खाली आपको आंकड़ा बताओ, 1000 लड़के हैं, तो उसके सामने जो संख्या देखने जाए तो 900 के अंदर लड़कियां की गिनती में आते हैं। और उसका मुख्य हेतु ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो बेटी माँ के पेट में हुई तभी उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं। एक ये हुआ इंसानों में, वैसे ही एक जैसे प्राणियों की बात करें तो प्राणियों में भी देखने जाए तो ये गौ माता है। तो ये गौ माता जैसे बहुत सारे पशुपालक हैं जो नंदी महाराज, जो गाय माता जो नंदी महाराज जो जन्म देते हैं ना, तो वो 8-10 दिन या 15 दिन में उनको बाहर
छोड़ देते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो खर्चा नहीं उठा पा रहे उसका, मगर ये चीज़ योग्य नहीं है, क्योंकि एक आप देखने जाए तो 15 हो सकता है कि ये तो बेच भी दे सकते हैं ना, बेच ऐसे होता है बहुत, बेच लाखों रुपए में बिकता ही है। नहीं, लाखों रुपये में ये नहीं बिकता है, क्योंकि ये सब हम देखने जाए ना तो ये सब जो रास्ते में जो छोड़ देते हैं, जो बीमार है, जो एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसे कत्ल खाने चले जाते हैं और उसका कत्ल खाने में चला जाता है, यानी चोरी छुप पे जाता है, यानी वो कुछ जाहिर नहीं है। यानी जैसे देखे कि किसी घर में अनलीगली पूरा ये होता है और ये पूरा कटिंग लोग जो खाने वाले उसको खाते हैं, और ये चीज़ हर चीज़ ये अनलीगल है। पहले क्या था कि खेतों में बैल का उपयोग बहुत होता था, तब बैलों की कीमत भी बहुत सारी थी। अभी क्या है, जनरेशन के हिसाब से लोगों ने आज अभी ट्रैक्टर भी लेना शुरू कर दिया और खेती बाड़ी ट्रैक्टर से हो रही, यानी बैल अभी कुछ काम के रहे नहीं, लोगों के लिए नहीं रहे। राइट। मगर देखने जाए तो बहुत काम के हैं, क्योंकि अपने मंदिरों में जाते हैं तो पूजा किसकी करते हैं, महादेव जी की पूजा करते हैं। उसके सामने नंदी महाराज होते हैं ना, वो नंदी महाराज तो एक पत्थर के होते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे जीवता जोग अपने पास अपने विस्तार में अपने नज़दीक में जो नंदी महाराज है, हम उसको पूजा नहीं करते, उसको रास्ते में छोड़ देते हैं, वो चीज़ कितनी योग्य है। पूरा मंथली कितना खर्चा आता है आपका पूरा? मंथली बात जो करे, दवाई चारे का 2.25 से 2.5 लाख के करीब हमारा ये दवाई और चारे के पीछे खर्चा हमारा जाता है। 2 से 2.5 लाख का हो जाता है। हाँ, और ये आता कहाँ से? आता ऐसा है कि ये कोई डाटा आ गया तो ठीक है, नहीं तो हमारे संस्था में नहीं जगह 300 से ज़्यादा युवा जुड़े हैं, और ये युवा ऐसे भी है कि जो एक मध्य छोटे घर से आए हैं, यानी उनका पगार देखे तो 10,000 से लेकर 15,000 या 20,000, ज़्यादा 20,000 तक पगार होता है। अभी वो उनके पगार में से भी 200-500 रुपये लेकर भी वो गौशाला में दान कर रहे हैं, यानी कुछ चारे की दिक्कत हो गई तो वहाँ दे गए। फिर ऐसे कोई नहीं, कब चारा आया तो कोई डाटा नहीं मिला, कब चारे की घट गए तो फिर ऐसा करते, फिर निर्माण के लिए भी उसी प्रकार से कोई ना कोई उसके आधार से होता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसका जितना से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग जो गौ माता से जुड़े, गौ माता से, और जो रास्ते में जो नंदी महाराज जो छोड़ देते हैं वो छोड़ना बंद करें और अपने घर पे उनको पालन पोषण करें, ऐसा हमारी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों में, हिंदी में बोल रहा हूँ कि अगर उसको पाल नहीं सकते हो तो उसको छोड़ो मत, घर पे रहने दो, क्योंकि चीज़ सही नहीं है, सही है कि नहीं। और इनका इस संस्था का जो नाम है, टोटली अकाउंट नंबर है, अगर 5 रुपये से 2 रुपये 10 रुपये जितना भी चाहे आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोनपे, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है। अब जाके जो जितना भी होता है आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा, और मिलते हैं नए वीडियो में, नए दमदार ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बांग्ला। बहुत अच्छा लगा।